بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ ایران میں جنوبی ساحل کے شاداب علاقے گیلان میں ایک بستی نیک کے نواح میں ایک دبلا پتلا لمبے قد کا گندم گو نوجوان ہل چلا رہا تھا۔ بیلوں کو ہانکتے ہوئے اس نے محسوس کیا جیسے وہ رک گئے ہوں۔ عبد القادر، تم اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ بیل نے یہ کیا کہا؟ وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے انسان ہو۔ ماں، بیل نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بیٹے نے پورا واقعہ سنایا۔ ہاں بیٹا، سچ ہی تو ہے۔ بیل نے سچ ہی تو کہا ہے۔ تم بیل چلانے اور بیل ہانکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ نوجوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے اور یہ ان کی والدہ ام الخیر تھی۔ آپ اس وقت 18 برس کے تھے اور والدہ 78 برس کی۔ یہ عجیب بات تھی کہ 60 برس کی عمر میں کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو۔ تم دوسرے بچوں کی طرح کب ہو؟ آج تک تم نے نہ جھوٹ بولا نہ زبان سے گالی دی۔ مجھے یاد ہے جب تم میری گود میں تھے تو رمضان میں کبھی دن کو دودھ نہیں پیا تھا۔ ایک بار عید کے ہونے کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے کہا شیخ ابو صالح کے ہاں جا کر پوچھو کہ ان کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ آپ نے ماں سے جب تحصیل علم کے لیے بغداد جانے کی اجازت چاہی تو وہ رو دیں۔ 40 دینار صدری میں بغل کے نیچے بطور زادے راہ سی کر فرمایا، ہر معاملے کی بنیاد راست بازی پر رکھنا، تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ آپ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جس پر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ لوٹ مار کے بعد ایک قزاق نے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے 40 دینار کے بارے میں بتا دیا۔ وہ مذاق سمجھا۔ پھر دوسرے قزاق سے بھی اسی قسم کی گفتگو ہوئی۔ پھر دونوں نے اپنے سردار سے ذکر کیا جس کے حکم سے صدری سے دینار نکال لیے گئے۔ سردار بولا، تم نے یہ کیوں بتایا؟ کسی کو ان کا علم نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا کہ سچ بولوں گا، اس عہد کو کیسے توڑتا؟ سردار یہ سن کر رو دیا اور بولا، افسوس، پروردگار سے کیے عہد کا پاس نہیں کرتا جبکہ تو ماں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتا۔ اور اس نے توبہ کر لی اور قافلے والوں کا مال لوٹا دیا۔ سن 486 ہجری میں آپ بغداد پہنچے کیونکہ علم و عرفان کے تمام راستے بغداد ہی کو جاتے تھے۔ معتز باللہ کا عہد تھا کہ شیخ غریبانہ اور طالب علمانہ گھر سے 400 میل دور امیروں، رئیسوں، تاجروں، صنعتکاروں اور کنیزوں کے اس شہر میں وارد ہوئے۔ یہ بلند و بالا عمارتوں اور جگمگاتی روشنیوں کا شہر تھا جس کے درمیان دجلہ رواں تھا۔ دن بھر لمبی لمبی بادبانی کشتیاں سامان تجارت لانے اور لے جانے میں مصروف رہتی اور شام کے وقت روسا کے آراستہ پیراستہ جہاز سطح آب پر دکھائی دیتے۔ آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ اساتذہ میں ابو زکریا تبریزی، علی ابن عقیل حنبلی، ابو المحسن محمد بن قاضی، ابو العلا حنبلی، شیخ ابو الخطاب محفوظ القوزاتی، ابو البرکات طلحہ العقولی، ابو الغناتم محمد بن علی میمون الفرسی، ابو عثمان اسماعیل بن محمد السبحانی، ابو طاہر عبد الرحمن بن احمد، ابو غالب محمد بن الاحسن الباقلانی، ابو العزم محمد بن المختار الہاشمی اور ابو منصور عبد الرحمن الکراس کے اسماء گرامی زیادہ معروف ہیں۔ 8 برس کے بعد 494 ہجری میں دستار فضیلت ملی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو وقت کے علماء میں کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہ تھا۔ شیخ کے اساتذہ کرام
जिनके नामे गिरामी आपने पढ़े वो सब के सब हम्बली थे। आप भी जब मसंदे दरसो अफ्ता पर बैठे तो इसके मुताबिक ही दरसो फतवा देते रहे। अकायद के हवाले से इस जमाने में बहुत से मकातिब फ़क्र यानी जिब्रिया, कदरिया, अशारिया और मातरीदिया वगैरह मौजूद थे। शेख अकायद के एतबार से अहले सुन्नत वल जमात के अशारी मकतब फ़क्र से ताल्लुक़ रखते थे। चनाचा जबरो कदर के हवाले से भी अहले सुन्नत वल जमात का मसलक ही बयान फरमाते थे कि बंदा अपने आमाल ना तो मजबूर महज है न मुख्तार कुल, बल्कि इन दोनों के दरमियान का है। शेख जब मदरसे से फारिग होकर ऊंचा बाजार में निकले तो सोचने लगे, इस सारी तकदो का मुहासिल क्या यही दस्तारे फजीलत है? इल्म ने मुझे रास्ता तो दिया लेकिन मंजिल कहाँ है? बेयकीनी और बेहासिली की इस दलदल से निकलने का ख्याल बेचैन किए रखता। बगदाद में शोरो हंगामे के सिवा कुछ नजर ना आता। तमाम लोग वक्ती लज्जतों की तलाश में सरे गिरदां उलमा शोहरत, उम्रा कुव्वत, अमरा वो तो इक्तदार और ताजर दौलत की जुस्तजू में मरे जा रहे थे। दजला के किनारों पर गुनाह का समुंदर मौजूदन था। शेख के तसव्वुर में गिलान का तसव्वुर उभरता, जहां माँ की इबादत, बाप की पाकबाजी और फूफी की खुदादर्सी का चर्चा था। जब एक साल में मींह ना बरसा तो अहले गिलान फूफी के घर आकर तालिबे दुआ हुए तो उन्होंने आंगन में झाड़ू देकर कहा, ए अल्लाह, मैंने झाड़ू दे दिया है, तू छिड़काव कर दे। और फिर मींह बरसने लगा। इन्हें खुदा से कितनी मोहब्बत थी, खुदा से कितना ताल्लुक था, कुर्बे इलाहा का कितना एहसास था। महज किताबें पढ़ लेने से ये मोहब्बत, ताल्लुक और तकर्रुब हासिल नहीं होता। वो तालिबे इल्मी के कठिन शबो रोज और 8 साल सबूतों का जायजा ले रहे थे, जैसे वो बेकैफ गुजर गए हों। एक दिन कुरान बगल में दबाए बाबे हुलवा की जानिब चल दिए कि वहां से रास्ता सहरा की तरफ जाता था। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, तुम्हारे दीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस अजीबो गरीब आवाज के साथ ही दिल को एतमीनान हो गया और फिर वापस लौट आए। अगले दिन बगदाद के एक मोहल्ले में से गुजर रहे थे तो एक शख्स ने मकान का दरीचा खोलकर कहा, अब्दुल कादिर, कल क्या इरादा था? शेख ये सुनकर हैरान रह गए, खुद रफ्तगी की कैफियत में कहीं से कहीं निकल गए। होश आने पर दरवाजे की तलाश हुई, लेकिन जहन ने साथ ना दिया। दिल कह रहा था, तमाम मुश्किलात का हल इसी के पास है। कई माह ढूंढते रहे, आखिर अचानक एक दिन बाजार में इस शख्स को लिपट गए। ये शेख हमादुद्दबास थे। दिमिश्क की बस्ती रहबा के रहने वाले, बगदाद में अंगूर और खुरमा का शीरा फरोख्त करते और मोहल्ला मंतफरिया में मुकीम थे। अहले दिल का मर्जा था। दूसरी मुलाकात पर कहा, तू मौलवी है, दरवेशों के पास तेरा क्या काम, यहाँ से चलता बन। आप बाहर निकल गए। जरा देर बाद फिर आ गए, उन्होंने फिर उठा दिया, फिर आ गए। कई दिन ऐसा ही होता रहा। पास बैठने वालों ने पूछा तो शेख हमादुद्दबास बोले, तुम क्या समझो, तुम में से कोई भी इसके पाए का नहीं है। शेख हमादुद्दबास की सोहबत ने आतिश इश्क इलाहा को खूब भड़काया। दिन को रोजा रखते और शाम को दजला के किनारे उगने वाले सब्ज़ा कोंदल की पत्तियों से अफ्तारी फरमाते। 11 बरस ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन बगदाद से निकले, सैकड़ों मील दूर नवाहे शस्तर में जा पहुंचे, जो बगदाद से 12 दिन की मुसाफत पर है। आप अपनी हालत पर मुताज्जब हुए। एक औरत पास से गुजरते हुए कह गई, अब्दुल कादिर होकर ताज्जुब करते हो? 11 बरस की रियासत के बाद करख की खुलवत गाह को छोड़ा और हज्जे बैतुल्लाह के लिए निकल खड़े हुए। बगदाद के लोगों ने एक अजनबी को पाया जो तालिबे इल्म की हैसियत से इनके शहर में आया और 8 बरस एक अच्छे तालिबे इल्म की तरह गुजारे। 30 बरस के बाद जब इसने जुबान खोली तो फसाए अरब गंग हो गए। इसके कलाम की तासीर को सिर्फ फसाहत और बलागत की फसूल तराजी नहीं कहा जा सकता। इसकी मजलिस दिलों के लिए मकनातीस थी। गुनाहगार आते तो ताइब होकर उठते,
गैर मुस्लिम शरीक होते तो कलमा पढ़कर उठते। वो ऐसे बयान करता, तुम उस पर नजर रखो जो तुम पर नजर रखता है, अपना हाथ उसे दो जो तुमको गिरने से संभाल लेगा, जो तुमको जहल की तारीकियों से निकाल लेगा, जो शयातीन, ख्वाहिशें और तुम्हारे जाहिल दोस्तों से निजात देगा। कहाँ चले? तो इस खुदा को छोड़कर जो हर चीज का पैदा करने वाला और बनाने वाला है, अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, दिलों की मोहब्बत, रूहों का इत्मीनान, घरानियों से सबकदोशी, बख्शिश व एहसान, इन सब का रजू इसी की तरफ है और इसी की तरफ से इसका सदूर है। एक मजलिस में इसी तौहीद के मजमून को इस तरह बयान फरमाया, सारी मखलूक आजिज है, ना कोई तुझको नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, बस हक ताला इसको इसके हाथों करा देता है। जो कुछ तेरे लिए मुफीद है या मिजर है, इसके मुतल्लिक अल्लाह के इल्म में कलम चल चुका है, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। माबूदाने बातिल की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, आज तू एतमाद कर रहा है अपने नफ्स पर, मखलूक पर, अपने दिनारों पर, अपने दरहमों पर, अपनी खरीदो फरोख्त पर, अपने शहर के हाकिम पर। हर चीज के जिस पर तू एतमाद करे वो तेरा माबूद है, और हर वो शख्स जिससे तू खौफ करे या तवक्का रखे वो तेरा माबूद है, और हर वो शख्स जिस पर नफा नुकसान के मुतल्लिक तेरी नजर पड़े और तू यूं समझे कि हक ताला ही इसका जारी करने वाला है, तो वो तेरा माबूद है। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, यानी तुम्हारी लोंडी है, और तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। इसकी तफसीर करते हुए फरमाया, दुनिया में से अपना मकसूम इस तरह मत खा कि वो बैठी हुई हो और तू खड़ा हो, बल्कि इसको इस तरह खा कि तू बैठा हुआ हो और वो तबाक अपने सर पर रखे हुए खड़ी हो। दुनिया खिदमत करती है इसकी जो हक ताला के दरवाजे पर खड़ा होता है, और जो दुनिया के दरवाजे पर खड़ा हुआ होता है इसको जलील करती है। हक ताला के साथ इज्जत व तोंगरी के कदम पर यह शख्सियत 40 बरस तक इनके दरमियान इस अंदाज में रही, और 10 रबीउल सानी सन 561 हिजरी को आलमे बका की तरफ रवाना हो गई।